I'm today more than happy to answer any questions. I think everybody is curious to know about कि startups में क्या होता है, funding कैसे होती है, valuations कैसे होते हैं. So any questions anybody has around the startup ecosystem, I'm happy to answer it. Yeah. Hello, good morning. So my question is basically, when we calculate you talked about the valuation. When we calculate the valuation, the most important part is P. Mm-hmm. So every industry has a different P, right? So how we calculate that different P of every industry? Like a textile has a different P, the food processing unit has a different P. So how we calculate that P and how we get to know that this industry has this P? Right. So basically ना P majorly जब valuation का तो public companies में P ज़्यादा count होता है. Private companies में valuation का methodology एकदम completely different है. People in fact say it's a combination of art and science. So there is no right answer to कि company का क्या valuation होना चाहिए private companies में. मैं public companies की कुछ भी बात नहीं करूँगा. Private companies में basically क्या होता है? First सबसे बड़ा factor होता है तो demand and supply का. So let's take an example. दो कंपनी similar space में कंपनी है, similar products है, similar market sizes है, तो दोनों कंपनी का valuation अलग हो सकता है based on the supply of the capital that they have. So one company, let's say, could be valued at 50 crores, the another company could not be valued at 5 crores also. Just to give an example. So इसमें कोई भी firstly, it is completely based on demand and supply. Second, इसमें बहुत सारे अलग-अलग factors आते हैं. एक तो क्योंकि जब investors capital लगा रहे हैं, तो वो एक premium valuation पे लगा रहे हैं based on कि उस company का future growth क्या है. पब्लिक कंपनीज में क्या होता है आज के करंट नंबर्स पे पैसा लगाया जाता है, प्राइवेट कंपनीज में पैसा लगाया जाता है उसके फ्यूचर पोटेंशियल पे. तो जब फ्यूचर पोटेंशियल पे लगाया जाता है तो उसकी पेडिग्री, फाउंडर्स की पेडिग्री, टीम कितनी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, कैटेगरी डिफाइनिंग है क्या क्या वो प्रोडक्ट, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं वैल्यूएशन निकालने में. ऑब्वियसली उसमें ट्रांजैक्शन कंपेरेबल मेथड आता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड आते हैं जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, बट अगेन वो उसके भी मल्टीपल्स निकाले जाते हैं. हर एक इंडस्ट्री का अगर कंज्यूमर का है तो उसका मल्टीपल एवरेज इंडस्ट्री में कितना चल रहा है. So that just to identify यार, but फिर भी अगर मान लीजिए ट्रेडिशनली कंज्यूमर सेक्टर का लेट्स से स्किन केयर का एग्जांपल अगर 3x चल रहा है मल्टीपल, तो वो जरूरी नहीं है कि एक कंपनी जो डिसरप्टर है स्किन केयर में उसका 3x टाइम्स दी वैल्यूएशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द एबिटा ऑफ द पैट जो भी उसका 3x वो could be much higher also. So I think there is no right answer to the valuation. I think, but valuation typically अगर हम अलग-अलग टाइप के businesses की बात करें, so एक trading business होता है, एक manufacturing business होता है, एक lifestyle business होता है, एक technology business होता है. So I think there are some businesses which cannot be valued because of the nature of the business. Lifestyle businesses cannot be valued. Trading businesses cannot be valued because उनकी कोई IP नहीं है. So I think manufacturing जहाँ पे value creation है, any business that has value creation, that has scalability, that has disruptive nature, that can be valued. So I think yes. Second question is, suppose one is a private limited company is going to list in the market, right? So is a private limited company and ये सारी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड होती है. इसके अलावा कोई भी LLPs में भी फंडिंग होती है, बट LLPs में टिपिकली क्या होता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है. तो लेट्स से आज आपने एक बिजनेस चालू किया, LLP कंपनी है, अब वो कंपनी में सिर्फ आपको एक ही इन्वेस्टर चाहिए, तो वो कंपनी वो बेसिकली LLP से पार्टनरशिप. तो और प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है शेयर्स होते हैं आपके कंपनी में 100% ऑफ प्राइवेट लिमिटेड है तो उस कंपनी में. So private limited company when it's transferred to a listed company, when I'm going to list this, अगर IPO चाहते हैं तो IPO हाँ, so then तो मुझे वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि IPO वो पब्लिक मार्केट्स में फिर तो मार्केट आपका वैल्यूएशन निकालेगा, तो मार्केट वैल्यूएशन निकालेगा. सो और इधर आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स आपके वैल्यूएशन निकालेंगे. हाँ, मतलब जो भी हाँ राइट मॉडल एक्सचेंज वगैरह. हाँ, सो माय क्वेश्चन इज कि आज का जो पीरियड है जो करंट वेंचर लिस्ट है वो सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा उनको वैल्यूएशन मिल रहा है या मैन्युफैक्चरिंग. सो अगेन लाइक आई सेड सर्विस इज आल्सो अ बिजनेस जहां पे वैल्यूएशन नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि उधर भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत ही मिनिमम बिजनेसेस होंगे अक्रॉस द ग्लोब जिसमें फंडिंग मिल सकती है. तो सर्विस बिजनेस में फंडिंग जनरली नहीं, मैंने नहीं देखा है. आई हैव सीन इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ब्रांड्स. कोई भी ब्रांड एक तरीके से आप बना रहे हो तो उस ब्रांडिंग में बिजनेस market Swiggy, Zomato, Zepto, they're not a service, they are a technology business, they are a marketplace. सर्विस बिजनेस हो गया कि एक आईटी कंपनी है वो एक सॉफ्टवेयर बना रही है, एक वेबसाइट बना रही है, एग्जैक्टली. और कंसल्टिंग हो गया, कंसल्टिंग सर्विस में कैटेगराइज होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज, वो सब सारी बिजनेसेस सर्विस में आएंगी. थैंक यू. सीए प्रैक्टिस हो गई वो सर्विस में. थैंक यू. Any more questions?
morning, everybody. Ranjit, I just want to ask, when you value any business, आपने ऐसे बोला, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ कि जो सर्विसेज है उनका वैल्यूएशन नहीं हो सकता, या और किसी का भी आपने शायद बोला कि वैल्यूएशन नहीं हो सकता, बिना वैल्यूएशन के तो कोई पैसा लगाएगा नहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो वैल्यूएशन में भी नॉट ऑन द सर्विस और फ्यूचर वैल्यू, प्रमोटर्स के लिए भी हो सकता है कि प्रमोटर्स कैसे हैं उनका वैल्यूएशन होता है, प्लस उनका आगे सस्टेनेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, फ्यूचर पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, उन सबको देख के उसका वैल्यूएशन तो होता है। अरे वैल्यूएशन तो ऐसे कोई भी बिजनेस का निकाल सकते हो, मतलब रजिस्टर्ड वैल्यू होता है, तो ऐसे तो एनी बिजनेस कैन बी वैल्यू, बट अल्टीमेटली वो वैल्यूएशन डिफाइन कब होती है जब उस कंपनी में एक इन्वेस्टर फंड करता है। यस, सो आई जस्ट वांट टू कि जो नए आप लोग अभी एज ए वेंचर कैपिटल पैसा लगाता है, तो वो क्या क्या चीजों को क्राइटेरिया देके और किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देता है, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी है, या कई बार प्रमोटर्स अच्छे नहीं होते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि प्रमोटर पैसा खा के भाग जाएगा, तो आप किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, प्रमोटर्स, प्रोडक्ट, मार्केट, बट गवर्नमेंट पॉलिसी? 50% goes to the promoter and the team, मतलब टीम अल्टीमेटली बिजनेस इज सो इवॉल्विंग, मतलब वो आज मान लीजिए एक आइडिया है, वो आइडिया शायद एक साल बाद वो सेम आइडिया नहीं है, मतलब प्रॉब्लम वो जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है वो इंडस्ट्री सेम होगी, बट उसका आइडिया काफी इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस इज इवॉल्विंग सो फास्ट. So I think promoter and the team 50% plus to the promoter and team. फिर उसके बाद obviously उसका product आता है, उसका market size आता है, उसका traction आता है. So there are obviously multiple factors, but I think effectively any private investor when they're investing into a company, it's a partnership with the team. Thank you. Is you got a question? हाय, माय क्वेश्चन इज आपने जैसे बोला कि जब भी आप किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट यू सी दैट स्केलेबिलिटी उसकी देखते हैं कि अगर वो स्केल, और जैसे आपने बोला कि बहुत सारे जहां आपने इन्वेस्ट किया वो एक्सप्लोड है इन स्केलेबिलिटी, सो हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट स्केलेबिलिटी? राइट, सी आपने बोला प्रमोटर को देखते हैं, बट कई बार प्रमोटर आपके जैसे यंग भी हो सकते हैं, Right. 26-27 की एज में आप क्या देखेंगे प्रमोटर में? So I think there is no right answer कि how do you evaluate. Yeah, I know it is a tough question. हाँ, मतलब there is no right answer, because इसका कोई formula ही नहीं है. अगर इसका एक formula होता तो I think बहुत easy होता सबके लिए. But I think it is again being very diligent with them, asking them tough questions, spending more time with them, visiting their office, उनके सारे डिटेल्स निकालना. दुनिया भर हम लोग के जैसे स्टैंडर्ड प्रोसेस हम लोग जो फॉलो करते हैं, वी आल्सो हैव सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर जहाँ पे बहुत सारी डेटा मिल जाता है, मतलब ऑन क्लिक्स वी लिटरली कैन गेट डेटा ऑफ दैट कंपनी. वो जो बोल रहा है उसके सिमिलर स्पेस में कितनी सारी और कंपनीज है ग्लोबली, इंडिया में बहुत सारा डेटा एक तो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं. सेकंड, उनका पूरा डेटा उनका टेम्पलेट होता है जिसमें वो सारे अपने ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, काफी सारी चीजें वो अपलोड कर सकते हैं. So I think it is purely first, it is also a gut feeling, I would say, to a lot of, and to some extent it is a lot of gut feeling कि यार you click with that person, or you click with that idea, and apart from that then it's just diligence. But obviously वो diligence काफी बार fail भी होता है, success भी होता है, because obviously when you're investing into 100 companies in any business, if you're venturing into 10 companies, 100 companies, तो उसका 20-30% companies ही आपको exclude करके देगी. Remaining 40 will do well, 40 will not do well. So I think that ratio is in any business dynamic or any investment asset class for that matter. Okay, thank you. Hi, good morning. My question is, what is the basic criteria to fund a startup, or what is the requirement from your side to fund a startup? I think जो हम लोग जनरली जिस कंपनीज में फंड करते हैं एक स्टेज पे पहुंच गई हो, एक प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया हो यार, क्योंकि काफी सारे इनके प्रोडक्ट्स कैटेगरी डिफाइनिंग होते हैं, डिसरप्टर होते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर रिलेटिवली न्यू टू द मार्केट. ऑब्वियसली इनोवेशन इज नॉट नेसेसरली कि यार वो पूरा ही इन्वेंशन जैसा हो, मतलब इनोवेशन कुड बी देयर इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन इन द मार्केट, उसको कंबाइन, उसको कुछ और इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से कुछ नया करना. Even if it is the beginning, we have an idea, we are going to ask you that this is the idea we could provide. So will you give the fund to that startup or the idea? So I think इसमें ना मैं डिफाइन करूंगा, बहुत सारे टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब इन्वेस्टर भी एक बहुत ह्यूज it's a very broad term.
क्योंकि उसमें पहले तो इंक्यूबेटर्स भी आते हैं, दे आल्सो हैव फंड्स, देयर आर लॉट ऑफ इंक्यूबेटर्स, इनफैक्ट सूरत में नहीं है बट अहमदाबाद में देयर आर कम से कम 50 प्लस इंक्यूबेटर्स जिनके पास गवर्नमेंट के बड़े बड़े फंड्स हैं, जो एक एक कंपनी में 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया दे राइट चेक्स. सो दैट इज वन काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर जो आइडिएशन कंपनीज में पैसा लगाता है. फिर एक होता है एंजल इन्वेस्टर. तो एंजल इन्वेस्टर टिपिकली वो आइडिएशन में भी लगा सकता है, इसके थीसिस पर डिपेंड करता है. सबका अपना, हर एक इन्वेस्टर का अपना थीसिस होता है कि यार मैं ये इस सेक्टर में पैसा लगाऊंगा, इस स्टेज पे कंपनी के पैसा लगाऊंगा. तो एंजल इन्वेस्टर दो तरीके से हो सकते हैं कि मैं आइडिएशन में पैसा लगाऊंगा और मैं आइडिएशन में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं मतलब आफ्टर एक सर्टेन ट्रैक्शन आ चुका मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊंगा. तो अगर एक कंपनी आइडिएशन पे है तो आई वुड रेकमेंड कि पहले वो कंपनी अगर जब तक वो अपना ट्रैक्शन प्रूव कर सकती है विदाउट रेजिंग कैपिटल, दे शुड. क्योंकि काफी सारे बिजनेसेस विदाउट कैपिटल ऑल्सो कैन ग्रो, बट काफी सारे बिजनेसेस का डायनेमिक होता है कि यार हमको स्टार्टिंग में इतना 5 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5-10 करोड़ चाहिए. तो आई थिंक उस केस में यू कैन गो टू प्लेसेस लाइक इंक्यूबेटर्स, यू कैन फाइंड एंजल इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजिक एंजल इन्वेस्टर्स जो आइडिएशन में पैसा लगाए. बियॉन्ड दैट देयर आर वेंचर कैपिटल फंड्स आल्सो. लार्जली 90% of the venture capital funds invest after traction, but काफी सारे बड़े-बड़े venture capital funds के अपने ideation आम की कि यार जो बहुत ही early stage company है उसमें भी हम पैसा लगाएंगे. So I think फिर उसके beyond family offices आते हैं, institutional investors आते हैं, then pension funds. So there is whole lot of categories in investors. तो वो as a company you have to identify मैं कौन से stage पे हूँ, उस stage पे कौन-कौन investors पैसा लगा सकता है. और investors तो trust me, मतलब the capital is surplus in the market. In terms of venture capital funds, I think there are close to 700-800 active venture capital funds in India, 1,000 plus registered funds, angel investors 20,000 plus. So I think काफी सारे investors हैं. Thank you. नमस्ते, my name is Ankit Ola. मेरा ये क्वेश्चन है, आज सूरत से सिटी के नाम से फेमस है, तो भी अपन मालवाड़ी लोग हैं अपन सब. हम सब कैसे अट्रैक्ट करें इन्वेस्टर को ताकि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके. I think first question वही, first answer private limited, वो एकदम basic criteria है क्योंकि उसके बिना आप investors को प्राइवेट लिमिटेड में तो फिर आपस में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता ना. प्राइवेट लिमिटेड में आपस में transaction नहीं हो सकता है. दूसरे इन्वेस्टमेंट पर्सनल ना क्या बोलते हैं सेविंग्स में ना. ये प्राइवेट लिमिटेड में ही ले सकते हो. That's what I'm trying to say. आप प्राइवेट लिमिटेड में ही शेयर्स होते हैं. आप शेयर जब आप देते हो दूसरे को तो प्राइवेट लिमिटेड में ही पॉसिबल है और कोई भी कंपनी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है. how can we attract the investor? So again, you know, it very boils down to आपका प्रोडक्ट क्या है. अगर आपका प्रोडक्ट टेक्सटाइल में कुछ बहुत ही कैटेगरी डिफाइंड है, let's say आपने कुछ ऐसा फैब्रिक बनाया, एग्जांपल बहुत ही वाइल्ड एग्जांपल दे रहा हूं, I don't have the right answer to that, but probably आपका फैब्रिक में बहुत ही कुछ सस्टेनेबल फैब्रिक है जो आप एक मार्केट प्लेस के थ्रू, you know, you can target a global market or you can target larger markets. Then in that case, you know, you can, you know, reach out to investors that have developed a certain, you know, then you obviously have to prepare a lot of documentation. आपका एक पूरा presentation बनता है, आपका data note बनता है, financial projections बनते हैं, आपके independent valuation report बनती है. तो वो सारे documents आपको बनाने पड़ते हैं. Then obviously you have to reach out to investors और essentially networking से होती है वो चीज़. और दूसरा cold reach out होता है. उसमें दो ही तरीका है. There is no third other way. सर एक डाउट कह सकते हैं कि अगर समझो मुझे इतने फंड की रिक्वायरमेंट है कि जितना मैं डेट के रूप में भी ले सकता हूँ, उस केस में मुझे इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए कि डेट के रूप में लेना चाहिए, ज्यादा उचित है? So I think firstly traditional banks जो डेट देती है वो सिर्फ एक हार्ड एसेट पे लोन देती है. वो कोई भी टेक्नोलॉजी बिजनेस को कभी भी लोन नहीं देगी आफ्टर until they've reached at a certain scale. So manufacturing business में again you will have to provide a collateral debt उठाने के लिए. तो वो एक अलग ही मीडियम हो गया. और equity is something that you can raise easily as in there are investors who can invest. Banks तो आपको collateral के against ही लोन देगी. There is no other way. I think कि आप debt raise कर सकते हो. NBFCs है, NBFCs again their rate of interest is probably 18%, 20%, 24%. So I think जहाँ पे आपका 100% 1000 monthly cash flow, predicted cash flow है, तो predicted cash flow ही NBFC देगी. But again NBFC में भी आपको guarantees तो देनी पड़ती है. Collaterals तो आपको देने ही पड़ता है. तो I think that is not easily available to startups per se. बट उसके सामने इन्वेस्टर का प्रेशर भी तो ऐड हो जाता है अगर हम अपनी इक्विटी. Honestly, मतलब वो एक myth है. It's a myth. You know, there are very professional investors who probably speak to you 3 months, 2 months, 3 months. मतलब हम लोग कंपनी के अंदर नहीं घुसते. Obviously, it's not possible for me to, you know, look out for 100 companies, right? हम लोग ने इन्वेस्ट किया, उनके 3-4 महीने में रिपोर्ट आते हैं. We just look at reports. And हमारे साथ क्या होता है? We are not just one investor. हमारे साथ हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो there are 50 other investors.